gametes होते हैं. There are male gametes in a male gametophyte. Okay, you can see here. ये देखिए, ये मैं आपको जब लास्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन बता रही थी तो मैंने बताया था कि what happened, the pollen grain fall on the stigma, it germinate into the pollen tube, and inside pollen tube there are two male gametes, or you, in other word, you may say two sperm nuclei. Nuclei क्यों बोलते हैं? Because these gametes are they have no wall, they are naked, that's why they are known as a nuclei. ठीक है, there are two sperm nuclei and this is a pollen tube, and this pollen tube will grow towards the ovary, and it will grow towards the ovary, and it will enter inside the ovule either through micropyle or through chalaza or through integments, है ना? Accordingly, that may be porogamy, chalazogamy or mesogamy, depending upon the route of entry. And after that, what happens? As you can see here, inside embryo sac, or I have already explained you that in basic polygonum type of embryo sac, there are 3 cells at the chalazal end that are known as the antipodals, 2 polar nuclei in the center that fuse together and make a central cell. 2 polar nuclei center में होते हैं, वो fuse करके क्या बना देते हैं? Central cell. And at the micropylar end, there are 3 cells. One central cell is the egg nucleus, and that is surrounded by the synergids. That egg cell is surrounded by the synergids. And when this pollen tube enters inside the ovule, one of the male gamete fuses with the egg, and another male gamete fuses with the central cell. So as you know that this central cell is a diploid in nature. ये central cell कैसा है? Central nucleus या central cell आप बोलो, या आप इसे secondary nucleus भी कहते हैं. ये secondary nucleus कैसा होता है? This is diploid. तो जब इसमें एक और male gamete fuse करता है तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. So ये तो एक जो बेसिक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, दैट इज अ ट्रिप्लॉइड काइंड. जैसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्योंकि आप जानते हो कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, तो जिसमें ये एम्ब्रियो सैक होगा उसमें जाहिर सी बात है कि जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी ट्रिप्लॉइड बनेगा. बट देयर आर सेवरल सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. अभी मैंने वो आपको बताया नहीं है. देयर आर डिफरेंट मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो उन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी वेरी करती है. कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म हैप्लॉइड भी है, कहीं पे ट्रिप्लॉइड है, कहीं पे पेंटाप्लॉइड है, कहीं पे नैनोप्लॉइड. नैनोप्लॉइड मींस देयर आर 9 cells. पेंटाप्लॉइड मींस देयर आर 8. Pentaploid means there are 5 cells. Nano means 9. Penta means 5. And triploid. So depending upon यहाँ पे ये central cell या secondary nucleus की प्लॉइडी कितनी है. अगर इसकी प्लॉइडी 2 है, डिप्लॉइड है, तो अगर एक से ये और फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा. अगर यहाँ पे ये इसकी टेट्राप्लॉइड है, 4 है इसकी प्लॉइडी. प्लॉइडी मींस व्हाट? प्लॉइडी मींस क्रोमोसोम नंबर, है ना. जैसे हमारे बॉडी में हम लोग डिप्लॉइड ह्यूमन बीइंग्स हैं बिकॉज हमारे बॉडी में हर क्रोमोसोम का 2 सेट है. ट्रिप्लॉइड मींस क्रोमोसोम का 3 सेट. टेट्राप्लॉइड मींस क्रोमोसोम का 4 सेट. सो प्लॉइडी मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो depending upon the ploidy of secondary nucleus, the ploidy of endosperm varies. तो अभी जब आप different type of embryo sacs पढ़ोगे जब, तो आपको वो clear हो गया. Before that, let me tell you, आप endosperm का development ऐसे होता है. And what is the function of that endosperm? उस endosperm का function क्या है? देखो, endosperm has basically nutritive function. endosperm का जो basic function है, that is a nutritive means to provide nutrition to the developing embryo. उसे nature ने क्यों create किया? Just to provide nutrition to the developing embryo. ठीक है. And there are basically 3 kind of endosperm: nuclear type,
cellular type and halobial type. So what is a nuclear type endosperm? Nuclear type क्या होता है? Nuclear type में ये देखो, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्यूज करके जो एंडोस्पर्म बनेगा, वो उसके अंदर की सेल डिवाइड होकर के बहुत सारी न्यूक्लियाई बना लेंगी. क्या बना लेंगी? न्यूक्लियाई. तो न्यूक्लियाई बनेंगी बहुत सारी, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पे सेलुलर डिवीजन नहीं होगा. न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. हाँ, तो हियर न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस. सो ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन फ्रीली एम्बेडेड. ये देख रहे हो, डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियाई इसमें फ्रीली एम्बेडेड है. एंड दिस इज द न्यूक्लियर टाइप ऑफ अ endosperm. What happens in a cellular type of endosperm? In cellular type of endosperm, the nuclear division is followed by the cytoplasmic division. Nuclear division is followed by the cytoplasmic division. हर न्यूक्लियर, ये आप देखो यहाँ पे जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रहा है, ये डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं. That's why it is known as a cellular. And third one is a halobial. Halobial is an intermediate between nuclear and cellular. It means some of its component or compartment is like nuclear and some of its compartment is like cellular. कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे nuclear ही है पूरा, और कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे cellular structure है. So the halobial type is intermediate between the nuclear and cellular. Now, next thing is ruminate and mosaic endosperm. What is a ruminate? Ruminate का मतलब क्या है? देखो, you can see this. ये देखिए एंडोस्पर्म. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंडोस्पर्म जो है सीड के अंदर है ना. सीड देखो, ये you can see this. ये क्या है? ये एक सीड है, और इस सीड के अंदर ही एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है. तो कायदे से जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म में एक तरीके से एम्बेडेड होता है, और वो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. पर कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स. ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं. ऑर्किड्स में पोडोस्टेमेसी में ट्रैपेसी. देयर आर 3 फैमिली, यू मे नोट डाउन इट. ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी एंड ट्रैपेसी, जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं. ओके, क्योंकि आपको सबसे पता है, आप बहुत ऑब्जेक्टिव में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सीड किसका होता है. ऑर्किड्स की सीड बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म तो पाया ही नहीं जाता. तो ज्यादातर जो वो छोटे साइज के सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है. यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको? रूमिनेट एंडोस्पर्म की बात कर रही थी. रूमिनेट एंडोस्पर्म में जब ये एंडोस्पर्म का वॉल बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ सा होता है, रीजेस एंड फरो. जब वहां पे रीजेस एंड फरोज का फॉर्मेशन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द रूमिनेट. आप ये देखिए, ये कैसे इसमें रीजेस एंड फरोज का फॉर्मेशन हो गया है. यहाँ पे ये देखो, ऐसे अप डाउन बहुत सारे इस तरीके से देख रहे हो ना. ये पूरा सिकुड़ा हुआ डिजाइन बना हुआ है, डिजाइनर है ये एंडोस्पर्म. सच काइंड ऑफ एंडोस्पर्म इज अ रूमिनेट एंडोस्पर्म. ठीक है. तो ये रूमिनेट एंडोस्पर्म नॉर्मली उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है. तो सॉरी, तू तक प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इधर आ रहा बिना है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. वो बता रही मैं, अब आई है तू जी का मॉडल है. कोमल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay. The second thing is a mosaic endosperm. Mosaic endosperm means जब एंडोस्पर्म डिफरेंट कलर के हो. तो ये ज्यादातर मोजाइक एंडोस्पर्म का एग्जांपल मक्के में होता है कि कहीं पे ऑरेंज है, येलोइश है, कहीं पे व्हाइट पैचेस है. जब when different colored patches are present in the endosperm, then that is known as a mosaic. Mosaic का मतलब ही होता है पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर. तो ये ज्यादातर मक्के में होता है. एंड
नेक्स्ट थिंग इज एल्यूरोन टिश्यू और लेयर। ये एल्यूरोन लेयर क्या होता है? देखो ज्यादातर जो एंडोस्पर्म की वॉल होती है वो थिक वॉल्ड होती है एंड दे हैव नो पिट्स और कनेक्शंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी एंडोस्पर्म किसी में एंडोस्पर्म की वॉल जो है थिक वॉल्ड होती है एंड दे हैव पिट्स एंड दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म is rich in protein and it is known as a aileron tissue or aileron layer. तो ये काफी इसमें न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, हाई प्रोटीन रिच होते हैं और इसे एल्यूरोन टिश्यू और एल्यूरोन सेल्स भी बोलते हैं। और ऐसे ऐसे ज्यादातर ग्रेन्स में ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं और उन्हें एल्यूरोन ग्रेन्स भी बोलते हैं। एंड तो इस एल्यूरोन लेयर में की क्या खास बात होती है? यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीनेज का जैसे प्रोटीएज का काम क्या है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। एमाइलेजेस का रोल क्या होता है? एमाइलेज का ब्रेक डाउन करना। एमाइलेज क्या है? दैट इज अ स्टार्च। और बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्टोर्ड प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनका जो रोल मेनली होता है सीड जर्मिनेशन में होता है। जैसे सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत, ऐसा नहीं है ग्रोइंग प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होगी, तो डेफिनेटली इट विल नीड बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग, सो इट विल नीड न्यूट्रिशन। तो ये एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये स्टोर्ड फूड है यहाँ पे एल्यूरोन लेयर में। और यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और जब फूड की जरूरत होती है ग्रोइंग जर्मिनेटिंग सीड्स को, तो ये क्या करते हैं? वो प्रोटीन और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करता है। सो इट इज अ एल्यूरोन टिश्यू और लेयर। देखो ये आपका एम्ब्रियो दिखा रहा है डायग्राम में एंड दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज द एल्यूरोन टिश्यू। ओके, इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज जीनिया एंड मेटाजीनिया. What is genia and metagenia? Genia and metagenia is the basically the effect of pollen grain. Pollen grain का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में इफेक्ट। जैसे कभी कभी पॉलिन ग्रेन एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मक्के का एग्जांपल देखो कि अगर येलो सीड वाला मेल प्लांट है ना, मेल प्लांट वो कैसा है? डायोसिस प्लांट है मक्का, मेल और फीमेल उसका अलग होता है। तो अगर येलो सीडेड मेल प्लांट अगर से क्रॉस कराया जाएगा व्हाइट सीडेड का, तो उसमें जो एंडोस्पर्म डेवलप होगी वो येलो होगी। मींस पॉलिन ग्रेन जहां से आया है, मेल गैमेट जिस प्लांट से आया है, उसका जो कलर है एंडोस्पर्म का वही कलर डेवलप होगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीनिया, द इफेक्ट ऑफ pollen grain on the developing endosperm. And what is metagenia? Metagenia is the effect of pollen grain on the structure outside the endosperm. तो endosperm के outside क्या structure होता है? fruit wall होगा, ovary wall होगा। जब ovary wall पे भी उसका effect हो, जैसे कि date palm, डेट जो पाम होता है, डेट पाम आप लोग जानते होंगे, बहुत कॉमनली लगा होता है, ग्रो करता है। उसमें जो फ्रूट्स की मेच्योरिटी टाइम या उसके साइज ऑफ सीड्स फ्रूट्स होते हैं, दे आर अफेक्टेड बाय द पॉलन ग्रेन। किस तरीके के पॉलन ग्रेन से वो पॉलिनेट हुआ है उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द मेटाजीनिया. सो concept of genia was given by Fouquet in 1881 and metagenia by Swingle 1928. So it was all about your endosperm and there are different kind of embryo sacs. तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं. मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक. ओके, मोनोस्पोरिक मींस जैसा आपने पॉलीगोनम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, कि एक बार जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किससे होता है? मेगास्पोर मदर सेल ही तो बनाती है ना उसको, है ना.
जो मेगास्पोर होता है दैट इज डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज आल्सो नोन एज अ एम्ब्रियो सैक। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड अंडरगोज मियोसिस एंड इट मेक्स अ मेगास्पोर, और जब मियोसिस होता है तो कितने सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे ये देखो दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, इसमें एक सरवाइव करेगा, बाकी 3 डिजनरेट हो जाएगा। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। तो अगर ये सिंगल मेगास्पोर फर्दर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, दिस इज नोन एज अ monosporic type of embryo sac. But when bisporic, 2 सेल इन्वॉल्व है डेवलपमेंट में। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो 1 से 2 बना, और फिर दोनों तरफ फिर 1 से 2 बने, ठीक है। तो एक तरफ मान लो, अगर ये आप दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देखो ये सिंगल है, 1 से 2, फिर 2 से 4। अब इसके भी 2 कंपार्टमेंट है, अपर सेल और लोअर सेल। तो अपर सेल लोअर सेल, या आप ये इसको कह सकते हो माइक्रोपाइलर रीजन और कैलेजल रीजन, है ना। या तो ये माइक्रोपाइलर साइड में होगा, एक कैलेजल साइड में होगा। तो मान लो सपोज ये ऊपर वाला, इसको आप ये ऊपर वाला कैलेजल साइड है और नीचे वाला माइक्रोपाइलर साइड। तो अगर ऊपर वाला जो कैलेजल साइड का है ये डेड हो जाए और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर साइड से हो, तो दैट इज कॉल्ड एंडीमियन। एलियम, देखो ये 2 तरीके के होते हैं, एलियम और एंडीमियन। तो जो एंडीमियन होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर टाइप ऑफ बाइस्पोर, एंड जो एंडीमियन होता है वो कैलेजल, जब इस साइड से डेवलपमेंट होगा कैलेजल एंड से, दैट विल बी कॉल्ड द एंडीमियन। उसका बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही होगा जैसा पॉलीगोनम में है, कि ये 2 थे और 2 से फिर 4 बने, 4 से 8 बने, और उसका फर्दर डेवलपमेंट वैसा ही होगा जैसे पॉलीगोनम में है। पॉलीगोनम का एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देती हूँ कैसे डेवलपमेंट होता है। देखो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, अब इसमें माइटोसिस होगा, 1 से 2 सेल बन रही है, फिर 2 से 4 सेल। देखो फिर ये 2 से 4 मतलब जब माइटोसिस होगा सेल नंबर डबल हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, चारों एक एक पोल पे है। अब चारों पोल से एक एक न्यूक्लियाई जो है सेंटर में आएगी, इसी को पोलर न्यूक्लियाई करते हैं। यही फ्यूज करके क्या बना देता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 नाम है, या तो आप इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलिए या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलिए। बाकी के 3 जो है चले गए यहाँ पे, 3 जो है चैलेजल एंड पे क्या बना देंगे, एंटीपोडल्स, और 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बना देंगे, एग और सिनर्जिड्स। तो दिस इज द बेसिक डेवलपमेंट। तो ये पॉलीगोनम टाइप हो गया, और ये दूसरा जो बाइस्पोरिक है इसमें भी 2 कैटेगरी है, एलियम और एंडीमियम। अगर बाइस्पोरिक मतलब दो न्यूक्लियाई जो है इसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे एलियम या एंडीमियम। एलियम क्या है, जब ये जब कैलेजल एंड से डेवलपमेंट हो दैट विल बी कॉल्ड एलियम, एंड जब माइक्रोपाइलर एंड से डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एंडीमियम। तो अब आपको मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक में क्या डिफरेंस समझ में आता है, देखो इसमें जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस समझना है। जब मोनोस्पोरिक से एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे जितने सेल्स होंगे उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमिलर होगा, लेकिन जब ये बाइस्पोरिक से होगा यहाँ पे 2 स्पोर इन्वॉल्व है। देखो 2 सेल्स इन्वॉल्व है, तो इन दोनों का जो प्लॉइडी होगा, क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन अलग होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में जेनेटिक इसके वेरिएशन होगा। और टेट्रास्पोरिक क्या है, टेट्रास्पोरिक में जब चारों जो बन रहे हैं मियोसिस के प्रोडक्ट, वो चारों सेल ही इन्वॉल्व हो जाए डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ये जेनेटिक वेरिएशन है, क्योंकि 4 डिफरेंट तरीके के
इसे एक दूसरा टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, सीनोमेगास्पोर। क्या टर्म यूज करते हैं? सीनोमेगास्पोर। ठीक है, तो जब जो चार मेगास्पोर बन रहे हैं उसकी न्यूक्लियाई चारों मिलकर के एम्ब्रियो सैक को बनाती है, दैट इज कॉल्ड द सीनोमेगास्पोर और टेट्रास्पोरिक टाइप। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कैन यू ऑल हियर मी? यस मैम। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो अब ये इसमें ही डिफरेंट तरीके के एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे एक तो बेसिक पॉलीगोनम टाइप है, दैट इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और उसी में मोनोस्पोरिक में एक दूसरा है पॉलीगोनम के अलावा ऑयनोथेरा। ऑयनोथेरा कैसा होता है? वो टेट्रास्पोरिक होता है। टेट्रास्पोरिक होता है, अरे सॉरी, टेट्रास्पोरिक नहीं, उसमें केवल 4 सेल्ड होते हैं, दैट इज अ 4 सेल्ड। जैसे पॉलीगोनम इज अ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, यहाँ पे केवल 4 न्यूक्लियस होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये आप इसका डेवलपमेंट यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ एक से 2 बनेगा, और एक जो है साइड ये डीजनरेट हो जा रहा है, यहाँ पे यू कैन सी हियर। और केवल 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। जैसे यहाँ पे जो पॉलीगोनम में था, आप यहाँ देख रहे थे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्या है, 1 से 2, 2 से 4, टोटल कितनी न्यूक्लियाई है इसमें? 4 न्यूक्लियाई है, जिसमें से 3 न्यूक्लियाई एक एपर्टस में डेवलप हो जाएंगी, एग और सिनर्जिड्स बना लेंगे। केवल एक इसमें क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ऑयनोथेरा में जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड, क्योंकि केवल एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है यहाँ पे। तो जब ये मेल गैमेट से फर्टिलाइज होगा तो ये कितना कैसा हो जाएगा? एंडोस्पर्म का प्लॉइडी डिप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल न्यूक्लियाई है। अब जब एक और न्यूक्लियाई मेल गैमेट की आके फर्टिलाइज करेगी इसको, इसमें फ्यूजन होगा, तो जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉइड होगी। पॉलीगोनम में जो प्लॉइडी है दैट इज अ ट्रिप्लॉइड, और आयनोथेरा की जो प्लॉइडी है दैट इज अ डिप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव जहां एग्जाम होता है वहां पे बड़े आते हैं जोड़े। और एलियम और एंडीमियन भी मैंने आपको बता ही दिया है। एलियम एंडीमियन का डेवलपमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पॉलीगोनम का डिफरेंस है। एलियम एंडीमियन में डिफरेंस है, एंडीमियन जो है डेवलप होगा माइक्रोपाइलर एंड से, और वो दूसरा चैलेंज है। अब आया इसमें टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में जो चारों स्पोर इन्वॉल्व है डेवलपमेंट में, तो इसका एक एग्जांपल है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा बिल्कुल सिमिलर, एडोक्सा में डेवलपमेंट बिल्कुल कैसे होता है जैसे कि पॉलीगोनम में होता है। उसमें कितने सेल है? 7 सेल है, 8 न्यूक्लियड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 न्यूक्लियाई जो है सीनोमेगास्पोर की, 4 से 8 बनेगा। तो ये देखो 4 एक पोल पे, 4 एक पोल पे, और फिर एक एक दोनों में से सेंटर पे आएगी, 3 एक एपर्टस में डेवलप हो जाएगा, 3 एंटीपोडल्स में। सो एडोक्सा इज ए टेट्रास। एडोक्सा और पॉलीगोनम में क्या डिफरेंस है? पॉलीगोनम इज अ मोनोस्पोरिक एंड एडोक्सा इज अ टेट्रास्पोरिक। बाकी उसकी चीजें सिमिलर ही है, वो भी 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है। एंड इसके बाद आ गया बेटा प्लम्बेगो। ये देखो प्लम्बेगो। प्लम्बेगो में क्या है? प्लम्बेगो इज अ 8 न्यूक्लिएट एंड 5 सेल्ड। तो आप देखो प्लम्बेगो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैम आ रहा है मैम, लेकिन हाँ, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। थोड़ा कम क्यों? क्या नहीं समझ में? इससे पहले क्लास की थी मैम जो लास्ट क्लास हुई थी मैम वो मिस हो गई थी मैम, फाइल सबमिट करने गए थे उस दिन। हाँ हाँ, तो ऐसे करोगे बेटा तो फिर तो दिक्कत होगी ना, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। जो कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा, उसके लिए तो कोई हक नहीं कर सकता ना बेटा। चलो अब मैम इसमें एक क्या है? हाँ मैम नोट शेयर किए थे मैम आपने लास्ट क्लास के। हाँ हाँ, शेयर किया था। अभी क्लास मत इंटरप्ट करो।
चलो अब नेक्स्ट क्या है, अब जो है प्लम्बेगो है। अब प्लम्बेगो में देखो क्या होगा, प्लम्बेगो में जो ये 4 न्यूक्लियाई हैं, 4 से 8 बन गए, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, फिर 8 से 16 बन गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4, चारों 4 तरफ चले गए लेटरल पोजीशन पे। अब 2 लेटरल पोजीशन पे और 2 पोलर रीजन पे। फिर 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए, ठीक है। 8 से 16 बन गए, और फिर हर पोल से, हर चारों डायरेक्शन से 4 सेल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये कैसा हो गया, दिस इज अ टेट्राप्लॉइड। और बाकी जगहों पे कितने कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स हो गए, ठीक है। 3 इधर 3 इधर 3, और सेंटर में यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए, इसलिए ये कैसा हो गया, 16 न्यूक्लियड है, ठीक है। कितने न्यूक्लियस है इसमें, 16 न्यूक्लियड है, ठीक है। अब ये जो 4, क्योंकि 4 4 ये हो गया ना, 4 4 8 4 12 4 16, तो ये पिन्नी है। सॉरी, मैं प्लम्बेगो कर रही थी, फिर मैं पिन्नी बताने लगी। पिन्नी है, पिन्नी में क्या हो गया, पिन्नी में कितने सेल है, 16, कितने न्यूक्लियस है, 16 न्यूक्लियस है। ये 16 न्यूक्लियस में से 4 न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बना देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब जब इसको स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो ये जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पेंटाप्लॉइडी, क्योंकि ये टेट्राप्लॉइड है। और जब ये फर्टिलाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द पेंटाप्लॉइडी। तो पिन्नी में किस तरीके का एंडोस्पर्म पाया जाएगा, पेंटाप्लॉइड। और बाकी की चीजें जो है, ये 3 जो है एंटीपोडल में एक तरफ डेवलप हो जाएगा, और एक एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की ये सेल्स ऐसे ही लेटरल ऐसे ही होती है, इनका ऐसा कोई खास रोल नहीं है। एंड दूसरा ये प्लम्बेगो है। प्लम्बेगो कैसे है, 8 न्यूक्लियड है। जैसे पिन्नी में 8 से 16 बन जाते हैं, लेकिन प्लम्बेगो में 8 से 16 नहीं बनते। ये 8 सेल ही, 8 सेल में से ये 8 सेल आपको दिख रहे हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, सब में से एक 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 4 जो है सेंटर पे आ जाएगा। तो चारों सेंटर में आकर के टेट्राप्लॉइड यहाँ बना देंगे, और एक एक हर तरफ रहेगा। तो यहाँ पे जो है केवल एग है यहाँ पे देखो, और सिनर्जिड्स नहीं होंगे, सिंगल एंटीपोडल सेल्स होगा। और ये जो 4 न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज करके कैसा एंडोस्पर्म बना देगी, पेंटाप्लॉइड। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी है, प्लम्बेगो और पिन्नी दोनों में ही कैसा एंडोस्पर्म बनेगा, पेंटाप्लॉइड स्पर्म बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका पिप्रोमिया। पिप्रोमिया को याद रखना, पिप्रोमिया में जो एंडोस्पर्म बनता है वो नैनोप्लॉइड होता है, उसकी प्लॉइडी 9 होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 सेल जो है यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, और ये 8 फर्टिलाइज होकर के फिर क्या बना देते हैं, 9 सेल, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा और भी सब है, ये आप जब खुद से इसको समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें है कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है, डायग्राम से समझना है कि कौन सा सेल कहाँ जाता है, कितना। ये एक तरीके से याद करने वाला चीज है, तो इसमें ऐसे कुछ समझाने के लिए नहीं है। तो मैं अब इसको